If you are a teacher and you want to work in the UK as a teacher, so this video is only for you. And the first question in your mind is that is your education is equal to UK system, so you can teach in the UK schools. So the answer is that yes, you can teach in the UK with your education. If you are a qualified teacher in your country, and you can work in the UK in the secondary and primary schools as a teacher. In this video, I'll tell you the 9 points, and these 9 points cover all your queries about teaching job in the UK, how you can come to the UK, and what do you need, and all the questions that you have in your mind. So the first point will be UK qualified teachers steps. So in this step, I will tell you what are the steps to become a qualified teacher. The second step will be eligible subjects. So which subjects you should need, you should be qualified to become a teacher in the UK. And the third step will be qualification requirement. What are the requirements for teaching in the UK? And fourth will be QTS certificate. So the QTS test certificate is that qualified teaching certificate. Basically, in the UK, according to the UK government, if you want to teach in the UK, you need this certificate. It's just like a license, just like a doctor and nurses, they have a license. So it's just a license for the teachers as well. It's a QTS. It is called QTS. The fifth point will be job searching as a teacher. So this is the main point. आपको यूके में टीचिंग जॉब कैसे सर्च करनी है वो मैं साइट बताऊंगा, वो आपको तरीका बताऊंगा. And the sixth step will be visa requirements. What are the requirements for visa to the UK as a teacher? And the seventh step will be English language test. What are the requirements for the English language test? And then eighth point will be total cost. How much you gonna pay for all these process? And the ninth step will be salary package. How much you will get. Back to my channel. My name is Usman, and I'm working in UK on skilled worker visa from last 2 years. And on this channel, I make the videos for you very informative regarding all about the UK's, all about the UK, how you can get the job, which job is best for you, what you need to do now, what are the updates about the UK. So if you haven't subscribed my channel, please click the button and be updated about this channel. So in this video, we are going to talk about the teachers who are in the Pakistan, who are in the India or any other country except UK. How you can get the job in UK and how you become a qualified teacher in the UK. So now we're going to start with the first point, and the first point is that how to become teacher in the UK. So इसके लिए आपको सबसे पहले QTS सर्टिफिकेट चाहिए. So you need a QTS certificate for a teacher in the UK to become a teacher in the UK. So QTS टेस्ट जो है बेसिकली सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर दिया जाता है, टीचिंग ट्रेनिंग के बाद. और QTS नीड्स फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए आपको QTS जो है वो रिक्वायर्ड होता है. अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉ यू कैन टीच विदाउट QTS एज वेल, बट और ये सिर्फ आपको 4 साल के लिए अलाउ होता है. आप 4 साल के लिए यूके में विदाउट QTS भी पढ़ा सकते हैं. बट होता क्या है कि जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे विदाउट QTS, तो बहुत सारे लोग QTS के साथ अप्लाई कर रहे होते हैं. तो क्या होगा कि स्कूल वाले जो हैं वो QTS वालों को चूज़ करेंगे, ना कि आपको. तो इसलिए आपके चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं जॉब हासिल करने के लिए. इसलिए आपको QTS जो है वो मस्ट करना होगा. सो QTS क्या है? क्वालिफाइड टीचिंग सर्टिफिकेट. तो ये बेसिकली सर्टिफिकेट है जो कि यूके टीचिंग डिपार्टमेंट जो है वो टीचर्स को देता है. अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटीज़ की. तो सेकंड पॉइंट इज़ एलिजिबिलिटी. तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि मैंने ये क्वालिफिकेशन फ़लाँ कर रखी है इस सब्जेक्ट में, सपोज़ इस्लामियात में या पाक स्टडी में या संस्कृत में या हिंदी में, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? लेकिन इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो भी एजुकेशन हासिल की है और जिस कॉलेज से भी की है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो एजुकेशन और वो कॉलेज यूके के नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग और डिपार्टमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है. तो ये कैसे चेक करना है, ये आपको मैं अभी इस वीडियो में दिखाता हूँ. तो लेट्स गो टू द स्क्रीन. इंडिया से हैं तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन. तो आपका जो भी एरिया होगा आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है. सपोज़ ये वेस्टर्न रीजन कमेटी एरिया है तो इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाकर आप अपने जो भी आपका सिटी है, सपोज गुजरात है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज देख सकते हैं और यहाँ पे आप अपने डिग्री को भी देख सकते हैं. So this is only for the Indians people who are from India. They can go through this website. Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, or from any other country except India, you need to go through this website and you need to send your documents on this website. So this website is belong to UK.
सो ये जो कंपनी है ये आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी कि आपकी जो एजुकेशन है वो यूके एजुकेशन से मैच करती है या नहीं, या इस लेवल पे है या नहीं। तो आपको मेन्यू में जाना है। मेन्यू में आपको अब वर्क वर्ल्ड वाइड पे यहाँ पे एक्टिस क्वालिफिकेशन बेंच मार्किंग पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। आपने इस पे सारे बेनिफिट्स, आउटकम्स और 5 स्टेजेस ऑफ क्वालिफिकेशन बैंक मार्च बेंच मार्किंग एंड एक्ट्रेस रजिस्टर्ड एंड बेंच मार्क्ड क्वालिफिकेशन, ये सारे पढ़ लेने हैं। और अप्लाई कैसे करना है आपको नीचे ईमेल नज़र आ रही है। आपने इनकी टीम को अप्रोच करना है। तो अब आपने चेक कर लिया कि आपका जो डिग्री है और आपका जो कॉलेज है, वो इस लिस्ट में मौजूद है। तो क्या आप अब यूके में अप्लाई करने के एलिजिबल हो? तो नहीं, क्योंकि आपको एक स्टेप और चेक करना है, और वो क्या है कि आपको अपना कॉलेज और डिग्री चेक करने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपने जो क्वालिफ़िकेशन हासिल की है, वो किन सब्जेक्ट्स में की है, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड सब्जेक्ट्स में आप यूके में अप्लाई कर सकते हो। तो वो सब्जेक्ट जिनमें आप क्वालिफ़ाइड हो, वो कौन से हैं जो आपको यूके में ला सकते हैं? उनमें आपका मैथ, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स है। अगर इसके अलावा आपने किसी सब्जेक्ट में क्वालिफ़िकेशन की है, तो आप यूके में जॉब अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपको यहाँ पर क्यूटीएस अप्लाई करने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि क्वालिफ़ाइड टीचिंग सर्टिफ़िकेट है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, जो कि आपको उसी सब्जेक्ट में करना है जो यहाँ पर एलिजिबल हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। वी टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई क्यूटीएस। सो क्यूटीएस अप्लाई करने के लिए यू नीड ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स। तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। पहला आपको चाहिए डिग्री कंपेयर सर्टिफिकेट एंड सेकंड आपको चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज का आपको टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। सो नो लेट्स वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ डिग्री कंपेयर सर्टिफिकेट। सो डिग्री कंपेयर सर्टिफिकेट क्या है? तो ये बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कंपैटिबिलिटी सर्टिफिकेट है, जिसमें ये आपको शो करता है कि आपकी जो एजुकेशन, आपकी कंट्री की जो एजुकेशन आपने हासिल की है, क्या वो यूके एजुकेशन के लेवल पे है, क्या या वो यूके एजुकेशन के लेवल के किस लेवल पे आती है। और अगर जो आपने बीएड किया है या जो भी डिग्री आपने हासिल की है, क्या वो यूके के किस ग्रेड में आती है। तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको फिर से एक स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। तो हम वहाँ पे चेक करते हैं कि आपकी जो कंट्री की एजुकेशन है वो यूके की इक्वल है या नहीं है, या किस ग्रेड में फॉल करती है। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। ये वेबसाइट है स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी के लिए। और आपने इसको कैसे चेक करना है, इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आते हैं तो आपको नीचे हाउ इट वर्क्स, हाउ डू आई अप्लाई, व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड टू अप्लाई एंड प्राइस एंड टाइम, फिर आप चेक करके इसको अप्लाई नो पे क्लिक कर सकते हैं और आप अपनी कंपैरेबिलिटी को चेक कर सकते हैं एजुकेशंस के। ये तो हो गया डिग्री कंपैरिजन सर्टिफिकेट आपने कैसे करना है और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। एंड द सेकंड डॉक्यूमेंट इज़ दैट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपने नहीं देना, इसके लिए 2 ही स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो आपने देने हैं, और उनमें से पहला है यूकेवीआई, जिसका स्कोर है वो B2 या 5.5 होना चाहिए। अदरवाइज़ लाइफ स्किल टेस्ट है, जिसका स्कोर B2 होना चाहिए, और दूसरा टेस्ट जो है वो लाइफ स्किल। इन दोनों में से आपने कोई एक टेस्ट इसके टीचिंग के लिए देना है। इसके अलावा 1-2 और डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपके पास 100% होंगे, जिसमें डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी होंगे जो आपने डिग्रीज़ की हैं। सेकंड, आपके पास एक्सपीरियंस भी 2 साल का होगा या इससे ज़्यादा होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, आपको टीबी टेस्ट की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। वी आर शो यू अ डेमो हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द क्यूटीएस। सो क्यूटीएस क्वालिफाइड टीचिंग सर्टिफिकेट, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको यूके में जॉब अप्लाई करने के लिए। तो अभी हम स्क्रीन पर देखते हैं कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। So this is the website from where you can check the QTS. So it will ask you some question. So you have used this website? No. And then the next question is in which country? So you will write it down India. Suppose I'm going to write it down India. And do you have a teaching qualification in India? Yes, you have. Do you have a university degree? Yes, you have. And are you qualified to teach 11 to 16 years old? Yes. And does your teaching qualification certificate, university degree certificate stat that you are qualified to teach one of the following subject? So these are the subjects through which you can only apply. So math, science, biology, chemistry, physics. अगर आप इनमें से किसी के टीचर्स हैं तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऑब्वियसली आप हैं तो आप यस करेंगे इसको, देन कंटिन्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एम्प्लॉयड एज अ रिकग्नाइज्ड टीचर। जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। डू यू हैव एनी संक्शन और रिस्ट्रिक्शन, सो यू डोंट हैव एनीवन, सो यू विल से नो। एंड देन एलिजिबिलिटी आपकी हो चुकी है, आप एलिजिबल हैं, इसके लिए आप मज़ीद अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको मज़ीद एक दो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, जिसमें प्रूफ ऑफ क्वालिफ़िकेशन है, तो आप अपनी डिग्री जो है सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड करेंगे। देन आप की जो नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, वो आप प्रूफ करेंगे। अगर आप इन कंट्री में से नहीं हैं तो आपको ये देना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपने प्रोवाइड करना है। तो ये सारे टेस्ट आपको नज़र आ रहे हैं, आप इनमें से कोई एक टेस्ट करेंगे और वो आप जो है वो प्रोवाइड करेंगे एज ए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के। इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ वर्क हिस्ट्री जो है वो प्रोवाइड करना है। आपका जो भी वर्क हिस्ट्री है वो लिखेंगे। देन आपको सर्टिफाइड ट्रांसलेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश में नहीं है तो आप इसको सर्टिफाइड इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसलेट करवाने के लिए आपको ये लिंक नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है तो आपको ये पेज रहेगा, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। देन आपका काम हो जाता है। यहाँ पर आपने अप्लाई QTS पे क्लिक करना है तो आपका अप्लाई QTS। So guys, know you have applied QTS. It will take some time. तो जितनी देर में ये प्रोसेस होगा, जितना इसका टाइम लगेगा इसको ओके होने में, उतनी देर में आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप जॉब हंटिंग करेंगे, जॉब सर्चिंग करेंगे। और जब आप जॉब सर्चिंग करेंगे, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपने अपनी CV में ये ज़रूर मेंशन करना है कि आपका QTS जो है वो अंडर प्रोसेस है, ताकि आपके जॉब के चांसेस ज़्यादा हो सकें हासिल करने के। Going to discuss the job sites from where you can search the jobs फॉर टीचिंग इन द यूके। आपने हर एक स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सिर्फ उन्हीं स्कूल को अप्लाई करना है जिनके पास स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस होगा। तो ये कैसे ढूंढना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको वीज़ा चाहिए। आप पाकिस्तान, इंडिया और आउट ऑफ यूके से अप्लाई करेंगे, तो यूके में काम करने के लिए आपको वीज़ा चाहिए। और वो सिर्फ वीज़ा वही अप्लाई दे सकते हैं आपको जिनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होगा, जिन स्कूल्स के पास। तो फर्स्ट जो यूके हंटिंग जॉब हंटिंग है वो साइट है, आपको गूगल पे लिखना है लिस्ट ऑफ लाइसेंस स्पॉन्सर, लिस्ट ऑफ लाइसेंस्ड स्पॉन्सर। तो आपके पास ये सारी लिस्ट आ जाएगी। ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसको सर्च करना इसमें स्कूल्स थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको एक दूसरी साइट पे लेके जाऊंगा जो कि यूके टायर 2 स्पॉन्सर के नाम से है, यूके टायर 2 स्पॉन्सर। तो आपने इस पे जाना है और इसका लिंक भी मौजूद है नीचे, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पे जाके आप इजीली अपनी स्पॉन्सरशिप के हिसाब से जॉब ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आपने जाके डिपार्टमेंट में जाना है और एजुकेशन पे क्लिक करना है, तो आपके पास सारी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कंपनीज होगी वो सारी आ जाएंगी, तो आप इजीली इनको अप्रोच कर सकते हैं। मैं मज़ीद आपको थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो स्पेसिफिक कंपनीज़ को टारगेट कर सकते हैं जॉब के लिए, और कैसे आप स्पेसिफिक स्कूल्स को जो है वो अपनी CV और अपनी एप्लीकेशन जो है वो सेंड कर सकते हैं, जो कि जॉब के लिए बेस्ट यूके में हैं, जो स्पॉन्सर करते हैं। अदरवाइज़ आप इनके अलावा भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं बताऊंगा वो 6 ऐसे स्कूल्स हैं, जो 6 ऐसी साइट्स हैं, सॉरी 6 ऐसी साइट्स हैं जो बेस्ट हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है टेस्ट, सेकंड है government.uk, ये यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको टीचिंग जॉब्स की भरमार मिलती है। थर्ड है यूके स्कूल जॉब्स, एंड फोर्थ है एजुकेशन job.co.uk, फिफ्थ है इंगेज education.com, एंड फिफ्थ है eteach.com। सो ये 5-6 जो जॉब्स हैं, साइट्स हैं, ये बेस्ट हैं। अदरवाइज़ आप इनके अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं। Okay, so suppose you have applied on job and you get the response is that you are selected for the job. So the next step will be school will provide you the course. Uh, the school will provide you the sponsorship letter. तो जैसे ही आपकी जॉब हो जाती है तो वो स्कूल आपको एक लेटर प्रोवाइड करता है, जिसकी बेस पे आपने आगे वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और वीज़ा का क्या जो है वो तरीक़ेकार हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अप्लाई वीज़ा के लिए आपको आप जिस कैटेगरी में फॉल करेंगे वो होगा आपका स्किल्ड वर्क वीज़ा। सो स्किल्ड वर्कर वीज़े में आपने ये भी जॉब जो है आती है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो शॉर्ट लिस्ट ऑक्यूपेशन में आता है। शॉर्ट लिस्ट ऑक्यूपेशन क्या है, यूके में जिन ऑक्यूपेशंस में स्टाफ की कमी होती है, यहाँ पर वो जो जॉब्स हैं वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में होती हैं, और वहाँ पे वो कंपनी आपको जॉब देती हैं और स्पॉन्सर करती हैं और आपको वीज़ा मिलता है।
सो इनिशियली आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा, लेकिन उसके बाद 2 साल का एक्सटेंड हो जाता है और जब आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्ट 5 से 6 साल का ये प्रोसेस है, आप यहाँ पर परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। इसके बाद द मेन क्वेश्चन इज़ दैट टोटल कॉस्ट जो आपके माइंड में चल रही होगी। सो गाइस, वीज़ा के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो आपको 3 साल के वीज़ा के लिए 479 पाउंड जो है वो पे करने होते हैं 3 साल वीज़ा के लिए, और इसी के साथ आपको IHS फीस जो है वो भी पे करनी पड़ती है 1872 पाउंड्स, 1872 पाउंड्स। और इसी के साथ आपका टीबी टेस्ट का खर्चा है, आपकी फ़्लाइट का खर्चा है, आपकी अकोमोडेशन का खर्चा है। यूके में जब आप एज ए टीचर आ जाते हैं तो यूके गवर्नमेंट जो है आपको ये सारी पेमेंट वापस करती है। तो इसमें आपको ये है कि कुछ जो कंपनियाँ हैं वो आपको साथ-साथ जो स्टेप आप करते जाएँगे और जो आप अखराजात करते जाएँगे वो आपको पे करते जाएँगे, और कुछ जो कंपनीज़ हैं वो आपको यहाँ पर आके वो सारा रिफ़ंड कर देती हैं। आपका जितना भी खर्चा होता है वो सारा खर्चा गवर्नमेंट जो है वो आपको वापस कर देती है। बट आपको इसके लिए मेरी एक दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, आप कैसे ये अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट। सो इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट में आप क्या होता है कि जब आप यूके में टीचिंग की जॉब पर आते हैं तो आपको ये पेमेंट सारी वापस कर दी जाती है, और ये पेमेंट तकरीबन 10,000 पाउंड तक होती है, जो कि आपके तमाम अखराजात को कवर करती है। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतना खर्चा हो जाएगा तो क्या बनेगा, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा करना है। एक दफ़ा खर्चा करेंगे तो ये सारी पेमेंट आपको रिटर्न कर दी जाती है। Okay, now I'm going to talk about the salaries. The most interesting part of this video is the salary. So I'm going to talk about the primary school and the secondary school. So the qualified teacher जो होते हैं यहाँ पर, उनकी जो सैलरी मिनिमम होती है वो 30,000 पाउंड पर ईयर के हिसाब से मिनिमम सैलरी, और मैक्सिमम जो सैलरी है वो उनकी 47,000 पाउंड तक होती है। तो ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि आप लंदन वाली साइड पे रह रहे हैं या आउट ऑफ लंदन रह रहे हैं, क्योंकि लंदन जो है वो एक्सपेंसिव सिटी है। वहाँ पर अखराजात ज़्यादा हैं, वहाँ पर सैलरी ज़्यादा है, और आउट ऑफ लंदन जो है वो सैलरी कम है, खर्चा अखराजात कम है। तो ये एरिया वाइज़ भी इसलिए है। लेकिन अब जो हेड टीचर होते हैं, जैसे कि हमारे कंट्री में प्रिंसिपल्स और इस तरह के जो पोस्ट होती हैं, उनकी जो सैलरी है वो 53,380 पाउंड पर ईयर से मिनिमम होती है, और मैक्सिमम उनकी जो सैलरी है वो 1,39,891 पाउंड्स पर ईयर के हिसाब से होती हैं। इसी तरह जो अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं, अनक्वालिफाइड टीचर्स मीन्स जिनके पास क्यूटीएस नहीं है और जिनके पास एक्सपीरियंस कम है, तो उनको उनकी सैलरी जो है वो 20,000 से 37,000 तक होती है। ओके, सो अभी हम बात करेंगे जो अंडर ग्रेजुएट हैं और जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और जिनके पास क्यूटीएस नहीं है, तो वो क्या करें, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए एक ऑप्शन ये रहती है कि वो यूके टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल करते हैं। टीचिंग प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर यूके में टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टीचर्स की। इस रोल के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको इसमें इनरोल होना पड़ता है और आपको यूके में टीचिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ऑल्दो कि इसकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 9,000 पाउंड फ़ी होती है इसकी, इस ट्रेनिंग कोर्स की, जो कि आपको पे करनी पड़ती है। और अदरवाइज़ आपको यूके जो है वो डिफरेंट किस्म से सपोर्ट भी करती है इस प्रोग्राम से। आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं, आप और बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। 10,000 पाउंड की ग्रांट आपको मिलती है, जिसको हम इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट कहते हैं। सो गाइज़, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका भी आंसर करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज़, अप्लाई फॉर दिस एंड डू फॉर दिस, यू कैन डू, आई नो दैट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।